Hello, Cho. Good morning. Happy morning. How are you? Fine? Okay. आज हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. We are studying nowadays atom. I will to the structure of atom. Atom is spherical in shape. You know that the centrally situated compact body is called nucleus. Now inside the nucleus there are positively charged protons and chargeless neutrons. Outside the nucleus, in the extranuclear region, there are electrons. बच्चों हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और हमने ये बोला था that electrons revolve in the circular paths called orbits or shells. ये तो बाद में हमें पढ़ना ही है. Now today हम कुछ बातें करते हैं जो न्यूक्लियस से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन से रिलेटेड है. दिस इज प्रोटॉन. यदि प्रोटॉन ये प्रोटॉन है, लेट अस सपोज दिस इज द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज द पार्टिकल. माना कि उसको पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो पार्टिकल है तो उसे मास भी होगा. बच्चों क्या होगा? मास भी होगा. आई विल रिप्रेजेंट मास ऑफ प्रोटॉन लाइक दिस, मास ऑफ प्रोटॉन. फिर इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर न्यूट्रॉन्स आल्सो. सो न्यूट्रॉन्स भी है, उन्हें भी क्या होगा? मास होगा. दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन. और आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स constitute the mass of an atom. What we call atomic mass. What we call atomic mass. So what is the atomic mass? बच्चों वैसे इसका डेफिनेशन कुछ अलग है. The sake of simplicity, अभी हमें जिसकी जरूरत है बस उतना ही हम ले रहे हैं. हम ये बोलेंगे mass of all the protons inside the nucleus plus mass of all the neutrons inside the nucleus and mass of all the electrons in the extranuclear region. The total sum of all these masses you may call atomic mass. Yes बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. It is observed that mass of proton is nearly equal to mass of neutron. Mass of proton is nearly equal to mass of neutron, and it is taken to be 1 AMU, 1 atomic mass unit approximately. इसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ अलग है लेकिन हम फिलहाल उसको 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट. ये बहुत छोटा यूनिट है बच्चों, जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, उससे काफी छोटा ही है. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is taken to be 0.00055 AMU atomic mass unit. After the decimal there are 3 0, means इस वैल्यू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is approximately taken to be 0, means mass of electron is negligible. Mass of electron is negligible. So note down this. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. Now there are certain number of terms related to an atom. वो terms हम ले रहे हैं. Number 1, atomic number represented by 0. तो बच्चों एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर. So I will define it that the total number of protons present in the nucleus of an atom, the total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. It is represented by
Z, it is represented by Z. So Z is nothing but number of protons. Very simple. कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे, यदि कोई एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर 2. कोई एटम के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 92. Okay. Earlier we have studied that atom is electrically neutral, means number of protons inside the nucleus and number of electrons outside the nucleus are same. यदि कोई न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है तो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे? 3. तो फिर ये नंबर और ये नंबर सेम है, और इसलिए there are 2 definitions of atomic number. Number of protons is atomic number, number of electrons is also atomic number. Therefore you can also define atomic number as the total number of electrons present in an atom. So there are 2 definitions. Number of protons is the atomic number, or number of electrons is also the atomic number. Therefore you can write Z is equal to P is equal to E. Okay बच्चों, atomic number, number of protons or number of electrons. Please note down this. Okay. Now I have the next term. Second, atomic mass number represented by A. बच्चों अभी अभी हमने देखा that protons, एक प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेट मास कितना होता है? 1 AeM, और न्यूट्रॉन का भी लगभग उतना ही होता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं? निग्लिजिबल मास है. मतलब टोटल एटम का मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गया बच्चों? न्यूक्लियस में. मतलब मास से रिलेटेड टर्म्स पूरा, मतलब पूरा का पूरा मास इसी में है. जैसे मेरे बॉडी का पूरा मास, मैक्सिमम मास कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पोर्शन, ट्रंक. बाकी हाथ में इतना कहाँ मास रहेगा? सो दिस मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. इससे रिलेटेड टर्म, लेकिन ये नंबर है. नंबर है, मास नहीं, मास नंबर है. एटॉमिक मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड मास नंबर. सिंपली बोलना है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही है. तो जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उसका कलेक्टिव मास टोटल, दैट सम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर. सो द सम ऑफ total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass number. Simply you can call it as mass number. So A is equal to P plus N, atomic mass number, number of protons plus number of neutrons. But earlier number of protons को मैंने क्या बोला है? Z. So you can write A is equal to P को क्या बोल सकते हैं? P को क्या बोल सकते हैं? Z plus N. Yes or no? So this is the formula for the atomic mass number. Now third term is what? Neutron number. But जो very simple, सबसे simple definition, easy. Number of neutrons present in the nucleus of an atom is called neutron number. The total number of neutrons present in the nucleus is called neutron number. Now, to calculate a neutron number, we can use the formula for atomic mass number. A is equal to Z plus N. So N is equal to what? A minus Z. Okay. So we got the formulas for atomic number, atomic mass number and neutron number. So please note down this. Okay. So I think आपने नोट कर लिया.
Now, by using the formulas Z is equal to P is equal to E, A is equal to P plus N, एंड अभी देखा था हमने N इज इक्वल टू A माइनस Z। खैर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये दो फार्मूले से हम कोई भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 612, दिस इज द सिंबल फॉर कार्बन, दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर। तो सी Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E और Z का वैल्यू कितना है 6। देयरफॉर प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों? प्रोटॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे कार्बन में? बोलो 6। और न्यूट्रॉन का फार्मूला है हमारा A माइनस Z। A का वैल्यू ऊपर है, मास नंबर 12 माइनस Z 6 इज इक्वल टू 6। सो इसमें न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए? 6। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द एटम ऑफ कार्बन आर 18। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करेंगे, पॉज करेंगे, नोट करेंगे। वन मोर एग्जांपल, से आई हैव यूरेनियम 92 235। So this is what atomic number, this is mass number, atomic number Z is equal to P is equal to E, that is 92. Therefore J, number of protons 92 in the atom of uranium, number of electrons 92, and how to calculate N? A minus Z. A is 235 माइनस Z 92, कैलकुलेट करो and it is 143। टाइम लगाओ कैलकुलेशन को आपको 143। सो दीज आर न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नंबर हरदम सेम रहेगा। न्यूट्रॉन कोई एटम में सेम रह सकता है, कोई इसमें नहीं भी रह सकता है। ओके, नोट डाउन किया? सो वेरी सिंपल। नाउ इसमें एक्सेप्शनल बात बताता मैं आपको। देखो, सभी के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो होती है, लेकिन एक ऐसा एटम हमारे पास है जिसका नाम है हाइड्रोजन। 1 एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। नाउ यूज द फॉर्मूला Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, Z इज इक्वल टू 1। बोलो प्रोटॉन्स कितने हो गए बच्चों? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। बट N इज इक्वल टू A माइनस Z। 1 माइनस 1 दैट इज 0। न्यूट्रॉन्स 0। ये दुनिया में ऐसा एटम है कि जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। न्यूट्रॉन लेस एटम, व्हाट इज दैट? हाइड्रोजन, also called protium. Yes? Please note down this. Okay. तो ऐसे आप होमवर्क में बहुत सारे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 714, मैग्नीशियम 12, 25, नाइट्रोजन हो गया था, ऑक्सीजन 8, 18। आप करके देखिए, आप अब ओरली भी बता सकते हैं। प्रोटॉन्स 7, इलेक्ट्रॉन 7, 14 माइनस 7 7, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, 25 माइनस 12 13, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, 18 माइनस 8 10, न्यूट्रॉन्स। कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो ये लेक्चर में बस इतना ही। इसको आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।